Good morning, students. Let's start our lecture. From last few lectures, we were discussing past year's question paper. That is, we have already discussed theory question paper as well as practical question paper, right? और हमने almost सारे question papers complete कर दिए हैं कि जो online available है. That is, old question papers जितने भी online available है वो हमने complete कर दिए हैं, right? Now, within last lecture, we have already discussed that there is one concept that is cross page posting कि जिसके बारे में मैं आपको practical demonstration दिखाना चाहती हूँ कि कैसे हम cross page posting concept implement कर सकते हैं, right? So within this lecture, we will discuss two different concepts, or more precise, we will see the practical demonstration of two different concepts, that is cross page posting and how we can access master page control from the child page. Again, I repeat, we will discuss practical demonstration of two different things, that is cross page posting, and along with that we will also see that how we can access controls of master page from the child page, right? Now the concept is cross page posting and उसके regarding मैंने already यहाँ पे एक example create किया है, राइट? मैं आपको पूरा एग्जाम्पल स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन करती हूँ, सो आप नोट डाउन कर सकते हो. ओके, नाउ अप टिल नाउ यू नो कि आप वेबसाइट कैसे क्रिएट कर सकते हो, राइट? अगर आपको वेबसाइट क्रिएट करनी है तो फाइल, न्यू, एंड उसमें आप सेकंड ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हो वेबसाइट, राइट? जैसे ही आप फाइल न्यू वेबसाइट करोगे ये डायलॉग बॉक्स ओपन होगा. लेफ्ट हैंड साइड से आप लैंग्वेज सिलेक्ट करोगे एंड फ्रॉम द मिडल पैनल यू विल सिलेक्ट ASP.NET MT वेबसाइट. एंड आफ्टर दैट यहाँ से आप ब्राउज करके वो पाथ सिलेक्ट करोगे कि जहाँ पे आपको वो वेबसाइट सेव करनी है, एंड आफ्टर दैट यू विल स्पेसिफाई द नेम ऑफ द वेबसाइट ओवर हियर, राइट? एक बार आप वेबसाइट का नेम स्पेसिफाई कर दोगे, यू विल गेट दैट वेबसाइट विद इन योर सोल्यूशन एक्सप्लोरर. एंड एज वी हैव क्रिएटेड एम्प्टी वेबसाइट तो ऑब्वियसली वहां पे सिर्फ web.config फाइल अवेलेबल होगी, राइट? एंड आफ्टर दैट यू कैन क्रिएट any folder or pages or any other item within your website. So मैंने यहाँ पे अलग तरह से थोड़ा किया है. मैंने यहाँ पे फोल्डर ऐड किया है और उसका नेम दिया है दैट इज क्रॉस पेज पोस्टिंग. आप देख सकते हो सोल्यूशन एक्सप्लोरर के अंदर. एंड विद इन दैट आई हैव क्रिएटेड 2 पेजेस. लेकिन अगर आपको फोल्डर क्रिएट नहीं करना है देन ऑल्सो यू कैन डायरेक्टली ऐड पेजेस विद इन योर वेबसाइट, जो आप हमेशा करते हो, राइट? सो वहां पे और कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप डायरेक्टली ही आपके वेबसाइट के अंदर वो पर्टिकुलर पेजेस क्रिएट कर सकते हो. नाउ टू इम्प्लीमेंट द कंसेप्ट ऑफ क्रॉस पेज पोस्टिंग, you need to add 2 pages, more precise 2 web forms within your website. Again, I repeat, to implement the concept of cross page posting, you need to add 2 web forms within your website. एंड मैंने यहाँ पे वो दोनों वेब फॉर्म्स दैट इज वेब पेजेस के नेम यहाँ पे दिए हैं, दैट इज cp1.aspx and cp2.aspx. Again, I repeat, I have given the name of the I have given the name of the web pages, that is cp1.aspx and cp2.aspx, right? So these are the name of the web pages. Okay, now with the help of these 2 web pages, we will implement the concept of cross page posting. So of course, हमें पहले उसके regarding designing करनी पड़ेगी, right? So here it is. This is cp1.aspx page, right? और cp1.aspx पेज के ऊपर मैंने यहाँ पे स्पेसिफाई किया है दैट इज एंटर योर नेम, मतलब मैं यूजर के पास से नेम इनपुट करवाना चाहती हूँ. Beside that, I have placed one text box control, and the name of the text box control as you are able to see within this property window, right? ID property मैंने set की है of this text box control, that is txt name, right? So txt name is the ID property of the text box control के जिसके अंदर मैं यूजर के पास से नेम इनपुट करवाना चाहती हूँ. ओके, एंड आफ्टर दैट आई हैव एडेड वन बटन, राइट? और वो बटन की आईडी प्रॉपर्टी मैंने यहाँ पे सेट की है दैट इज btn submit, राइट? एंड टेक्स्ट प्रॉपर्टी मैंने यहाँ पे सेट की है सबमिट. अगेन आई रिपीट, आईडी प्रॉपर्टी मैंने यहाँ पे सेट की है दैट इज btn submit और टेक्स्ट प्रॉपर्टी मैंने यहाँ पे सेट की है दैट इज सबमिट. Along with that, मैंने यहाँ पे एक और प्रॉपर्टी सेट की है फॉर दिस पर्टिकुलर बटन, राइट? एंड द नेम ऑफ दैट property is postback URL property.
अगेन आई रिपीट, मैंने यहाँ पे ये btn सबमिट बटन की एक और प्रॉपर्टी सेट की है, दैट इज पोस्ट बैक यूआरएल प्रॉपर्टी। और आप देख सकते हो पोस्ट बैक यूआरएल प्रॉपर्टी के अंदर मैंने यहाँ पे cp2.aspx पेज सेट किया है। सी एज यू आर एबल टू सी, मैंने यहाँ पे सिलेक्ट किया है cp2.aspx पेज, राइट। ओके, इसका मीनिंग ये है कि जब भी यूजर ये टेक्स्ट बॉक्स के अंदर नेम एंटर करके सबमिट बटन के ऊपर क्लिक करेगा तो मुझे यूजर को कौन से पेज के ऊपर नेविगेट करवाना है, दैट इज cp2.aspx पेज के ऊपर नेविगेट करवाना है। लेकिन मैंने यहाँ पे बटन कंट्रोल की कोई भी क्लिक इवेंट नहीं लिखी है, मैंने यहाँ पे बटन कंट्रोल की पोस्ट बैक यूआरएल प्रॉपर्टी सेट की है, दैट इज टू cp2.aspx पेज, राइट। ओके, सो दैट इज ऑल अबाउट cp1.aspx पेज के यहाँ पे हमें ये डिजाइनिंग करनी है एंड वी जस्ट नीड टू सेट द प्रॉपर्टीज, राइट। ओके, now let's move on to the second page, that is cp2.aspx. so here it is, this is cp2.aspx पेज एंड यहाँ पे मुझे क्या डिस्प्ले करना है, मुझे यहाँ पे वो यूजर नेम या फिर वो नेम डिस्प्ले करना है कि जो यूजर एंटर करेगा ऑन cp1.aspx पेज। अगेन आई रिपीट, मुझे ये cp2.aspx पेज के ऊपर ये टेक्स्ट बॉक्स कंट्रोल के अंदर वो नेम डिस्प्ले करना है कि जो यूजर ये cp1.aspx पेज के ऊपर ये टेक्स्ट बॉक्स के अंदर इनपुट करवाएगा, राइट। ओके, सो cp2.aspx पेज के ऊपर मैंने सिर्फ यहाँ पे स्पेसिफाई किया है द वैल्यू इज एंड बिसाइड दैट आई हैव प्लेस्ड वन टेक्स्ट बॉक्स कंट्रोल कि जिसके अंदर आप देख सकते हो मैंने यहाँ पे आईडी प्रॉपर्टी सेट की है, दैट इज txt वैल्यू। अगेन आई रिपीट, मैंने ये टेक्स्ट बॉक्स कंट्रोल की आईडी प्रॉपर्टी सेट की है, दैट इज txt वैल्यू, राइट। ओके, सो दैट इज द थिंग यू नीड टू रिमेंबर कि हमने यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी सेट की है। नाउ द मेन पार्ट, अगर हमें क्रॉस पेज पोस्टिंग इंप्लीमेंट करना है, मैंने आपको ऑलरेडी थियरी समझाई थी व्हाट इज द मीनिंग ऑफ क्रॉस पेज पोस्टिंग, राइट। क्रॉस पेज पोस्टिंग का मीनिंग ये होता है कि ये cp2.aspx पेज के ऊपर हम cp1.aspx पेज के कंट्रोल की वैल्यू को हम डायरेक्टली एक्सेस करेंगे। अगेन आई रिपीट, cp2.aspx पेज के ऊपर हम cp1.aspx पेज के कंट्रोल की वैल्यू को हम डायरेक्टली एक्सेस करेंगे, राइट। ओके, सो ऑफ कोर्स यहाँ पे cp2.aspx पेज के ऊपर हमें कोड लिखना पड़ेगा, राइट। सो लेट्स सी द कोड, आप यहाँ पे देख सकते हो as you are able to see over here, मैंने यहाँ पे cp2.aspx पेज की पेज लोड इवेंट यूज की है। अगेन आई रिपीट, मैंने यहाँ पे cp2.aspx पेज की पेज लोड इवेंट यूज की है और पेज लोड इवेंट के ऊपर मैंने पहले टेक्स्ट बॉक्स कंट्रोल का रेफरेंस क्रिएट किया है। अगेन आई रिपीट, मैंने यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स क्लास का रेफरेंस क्रिएट किया है एंड कैसे आप कह सकते हो कि ये रेफरेंस है, बिकॉज मैंने यहाँ पे न्यू कीवर्ड स्पेसिफाई नहीं किया है, राइट। सो फॉर दैट पर्पज मैंने यहाँ पे स्पेसिफाई किया है dim txt एज टेक्स्ट बॉक्स, राइट। सो टेक्स्ट बॉक्स क्लास का एक रेफरेंस क्रिएट हो जाएगा एंड द नेम ऑफ द रेफरेंस विल बी txt, गुड इनफ। आफ्टर दैट हमने यहाँ पे txt दैट इज द रेफरेंस ऑफ टेक्स्ट बॉक्स, उसके अंदर मुझे क्या असाइन करना है, मुझे ये cp1.aspx पेज के ऊपर ये जो txt नेम टेक्स्ट बॉक्स है उसका रेफरेंस मुझे ये txt के अंदर असाइन करना है। लेकिन मुझे वो रेफरेंस पहले रिट्राइव करना पड़ेगा और वो रेफरेंस कहाँ पे होगा, ऑब्वियसली करंट पेज इज cp2.aspx, तो cp1 पेज के ऊपर जो टेक्स्ट बॉक्स है उसका मुझे रेफरेंस चाहिए, सो दैट इज द प्रीवियस पेज ऑफ cp2। Again, I repeat, cp1.aspx is the previous page of cp2, right? इसीलिए मैंने यहाँ पे स्पेसिफाई किया previous page, right? previous पेज के ऊपर से मुझे कंट्रोल फाइंड करना है, इसीलिए मैंने यहाँ पे फाइंड कंट्रोल मेथड का यूज किया, राइट। और मुझे कौन सा कंट्रोल फाइंड करना है, दैट इज txt नेम आईडी का जो टेक्स्ट बॉक्स है वो मुझे फाइंड करना है। अगेन आई रिपीट, txt नेम आईडी का जो टेक्स्ट बॉक्स है वो मुझे फाइंड करना है, इसलिए मैंने फाइंड कंट्रोल मेथड के अंदर पैरेंथेसिस डबल कोटेशन के अंदर वो txt नेम स्पेसिफाई किया है, राइट।
So with the help of this previous page object, right, and by calling this find control method, हम current page के previous page के ऊपर से कोई भी control को find कर सकते हैं, and we need to specify the ID of that particular control के जिसे हमें find करना है. Now the important part, ये previous page dot find control and then ID of the control वो हम specify करेंगे तो वो txt name का हमें reference return करेगा, but हमें यहाँ पे explicitly उसे text box में convert करना पड़ेगा. Again I repeat, हमें यहाँ पे उसे explicitly text box में convert करना पड़ेगा. So to convert that particular reference into the text box, मैंने यहाँ पे C type function का use किया है, which is the generalized function, more precise generalized conversion function, right? तो C type function के अंदर हम वो reference पास कर देंगे of that particular text box के जो हम previous page के ऊपर से find करेंगे, right? And वो reference को हमें किसके अंदर convert करना है? टेक्स्ट बॉक्स के अंदर कन्वर्ट करना है. तो C टाइप फंक्शन के अंदर हमें एक्सप्लिसिटली स्पेसिफाई करना पड़ेगा कि ये जो पर्टिकुलर रेफरेंस है या फिर ऑब्जेक्ट है उसे हमें कौन सी टाइप में कन्वर्ट करना है. इसीलिए सेकंड पैरामीटर मैंने जो C टाइप के अंदर पास किया है दैट इज टेक्स्ट बॉक्स, राइट? सो जो रेफरेंस हमें मिलेगा वो टेक्स्ट बॉक्स के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा विद द हेल्प ऑफ दिस C टाइप फंक्शन एंड वो txt के अंदर असाइन हो जाएगा, right? And after that I have specified the statement that is txt value, मतलब ये cp2.aspx पेज के ऊपर जो टेक्स्ट बॉक्स है उसकी आईडी है txt value, right? So txt value टेक्स्ट बॉक्स की टेक्स्ट प्रॉपर्टी के अंदर ये txt जो रेफरेंस है उसकी टेक्स्ट प्रॉपर्टी हमने असाइन कर दी है. अगेन आई रिपीट, ये txt वैल्यू जो करंट पेज के ऊपर टेक्स्ट बॉक्स है उसकी टेक्स्ट प्रॉपर्टी के अंदर हमने txt जिसके अंदर हमने प्रीवियस पेज के टेक्स्ट बॉक्स का रेफरेंस असाइन किया है उसकी टेक्स्ट प्रॉपर्टी असाइन कर दी है. इन शॉर्ट cp1 के अंदर जो हम वैल्यू इनपुट करेंगे वो अब हमें ये cp2 के टेक्स्ट बॉक्स के ऊपर दिखाई देगी, राइट? ओके, सो लेट्स डू वन थिंग, हम ये पर्टिकुलर एग्जाम्पल को एग्जीक्यूट करके देखते हैं. सो फॉर दैट पर्पस मैं cp1.aspx पेज को स्टार्ट पेज सेट करती हूँ, राइट? एंड वी विल एग्जीक्यूट द एप्लीकेशन. सो हियर वी गो. ब्राउजर के अंदर cp1.aspx पेज आप देख सकते हो एंड इट इज आस्किंग मी एंटर योर नेम. सो मैं यहाँ पे मेरा नेम एंटर करूंगी, राइट? एंड आफ्टर दैट आई विल क्लिक ऑन सबमिट बटन. जैसे ही मैं सबमिट बटन के ऊपर क्लिक करूंगी हमने सबमिट बटन की पोस्ट बैक यूआरएल प्रॉपर्टी सेट की है cp2.aspx. सो cp2.aspx पेज के ऊपर वो नेविगेट करेगा. cp2.aspx पेज की पेज लोड इवेंट एग्जीक्यूट होगी और हमने जो प्रीवियस पेज का रेफरेंस रिट्राइव करके जो टेक्स्ट प्रॉपर्टी असाइन की है उसकी वजह से cp2.aspx पेज के ऊपर हमें सेम नेम दिखाई देगा. सो लेट्स क्लिक ऑन सबमिट बटन. सी, अब आप यहाँ पे URL के अंदर देख सकते हो इट इज cp2.aspx पेज एंड cp2.aspx पेज के ऊपर जो टेक्स्ट बॉक्स था दैट इज txt वैल्यू, उसके अंदर भी आपको वही नेम दिखाई देगा कि जो आपने प्रीवियस पेज के ऊपर इंपोर्ट किया था, राइट? यहाँ पे हमने ना ही क्वेरी स्ट्रिंग का यूज किया है टू पास दी वैल्यू, ना ही कोई भी स्टेट मैनेजमेंट टेक्निक का यूज किया है, ना ही हिडन फील्ड का यूज किया है टू पास दी वैल्यू फ्रॉम वन पेज टू अनदर. वी हैव यूज्ड प्रीवियस पेज ऑब्जेक्ट, राइट? और प्रीवियस पेज ऑब्जेक्ट का यूज करके हमने कंट्रोल को फाइंड करके उसका रेफरेंस रिट्राइव करके हमने यहाँ पे असाइन किया है. सो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ क्रॉस पेज पोस्टिंग. Again I repeat, this is the concept of cross page posting कि कैसे हम करंट पेज से प्रीवियस पेज के कोई भी कंट्रोल की वैल्यू को रिट्राइव करके यूज कर सकते हैं, राइट? ओके, सो स्टूडेंट्स, the practical demonstration regarding cross page posting is completed over here, right? Okay.